Hello everyone, welcome back to 1P by Q a day series. Today we are going to discuss internal security question. Before starting with the question, you can avail free one-on-one mentorship by clicking on the link given in the description. Here is the question. Question is from year 2025. Question is for 10 marker, right? And the question is quite simple if you see. 10 marker, 150 words. Question is, the government of India recently stated that left-wing extremism will be eliminated by 2026. What do you understand by left-wing extremism and how are the people affected by it? Then, what measures have been taken by the government to eliminate left-wing extremism? Question is very straightforward. There is a line given by the examiner in a question. Then a direct question, what do you understand by left wing extremism? Another direct question, how are the people affected? Then third question, measures have been taken. ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे तो सिंपल है, सरकार ने क्या उपाय किए हैं, स्टेप्स which have been already taken, है ना. You don't have to suggest something new. Other part of questions are very straightforward, simple पूछा है, you have to address. So in the introduction, as they already given, what do you understand by left wing extremism as a part of the core demand. अब क्या होता है, इन जनरल हम स्टार्ट करते हैं विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसके डेफिनेशन के साथ मान लीजिए, या फिर हम जो भी समझते हैं, बट दैट इज द डिमांड, द कोर डिमांड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल ट्राई टू कंटेक्चुअलाइज, है ना, थ्रू सम करंट इवेंट्स. So recently what happened? Recently Operation Black Forest conducted by the government, which is also held as a golden chapter, which will be instrumental in eliminating left-wing extremism in that affected areas. Simple लिखेंगे because left-wing extremism को हम अभी define नहीं करना चाहते. That we will do into the main body part. ठीक है. तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट रिसेंटली हुआ है, कोबरा बटालियन, है ना. तो उतना ज़रूरत नहीं है वैसे किसने कंडक्ट करवाया, सिंपली गवर्नमेंट कंडक्टेड ब्लैक फॉरेस्ट गोल्डन चैप्टर. ठीक है. देन जो कि क्वेश्चन अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे ना कोई खास एनालिसिस की ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा नहीं है ना. द डायरेक्टिव्स व्हाट हाउ, है ना. तो सिंपल पूछा है, सिंपल आंसर होगा. नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. तो देखिए बेसिकली क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. इट्स अ मूवमेंट and this movement is rooted in a socio-economic inequalities, of course fueled by the Maoist ideology. And what exactly they are intended, what is their aim? Their aim is to undermine the state, Indian state specifically, through armed rebellion and through parallel government structure, of course, है ना. आइडियोलॉजी ही बोलती है कि दे वांटेड टू अंडरमाइन द एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट सो दैट दे कैन हैव देयर ओन. सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड थ्रू द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. इसलिए दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. देखिए क्वेश्चन में हम सिंपल जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, वी आर पिकिंग द हेडिंग फ्रॉम क्वेश्चन इटसेल्फ, यहाँ वहाँ जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना. इम्पैक्ट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी लिख सकते थे, मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट में से उठा लिया, पीपल अफेक्टेड बाय इट, है ना. क्वेश्चन, हियर इज द क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन, हाउ आर द पीपल अफेक्टेड बाय इट. कैसे, है ना. हिंदी में भी पढ़ सकते हैं वैसे आप, किस प्रकार प्रभावित है, राइट. सो किस प्रकार, हाउ, हियर इज द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल when I said कि they wanted to undermine the established government, कैसे करेंगे? Of course, by obstructing the security forces, कि सबसे ज़्यादा होता है. They wanted to hamper or maybe kill the security forces employed over there. तो यहाँ पे क्या होता है, insecure environment क्रिएट होता है wherein they undermine or maybe they harm the security forces, है ना.
सिंपल है. पीपल अफेक्टेड कैसे हो रहे देखिए, इनसिक्योर एनवायरमेंट एज दे थ्रेटन्स द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड ऑल्सो अटैक्स देम. अब इसके बाद क्या होगा, व्हेन देयर इज नो सिक्योरिटी फोर्सेस एज सच फॉर द कॉमन पीपल एनवायरमेंट इज इनसिक्योर. अफेक्ट हो गया ना उससे. व्हेन द एनवायरमेंट इज इनसिक्योर there is no freedom as such for maybe your occupation, maybe for the movement or any other thing, because you feel somewhere the law and order of that particular area is under threat. ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे हाउ पूछा है तो, बट दैट इज द कोर. देन लॉस और डैमेज टू द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, एजुकेशन आ गया, मे बी इवन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड हो गए आपके, ब्रिजेस हो गए, तो इकोनॉमिक. नाउ अंडरस्टैंड, लॉस ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर्स मे बी डैमेज टू देम, अगेन दे अफेक्ट द पीपल. अच्छा एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, livelihood earning opportunities were again undermined by the loss of such infrastructures, so ultimately people again will be affected. Correct. Then undermine democratic institutions. Yes, आपने सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक किया, आपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया. नाउ अल्टीमेटली यू आर अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. अब इससे क्या होगा, when people will lose a trust in the established government, they will migrate. तो यहाँ पे क्या इशू आता है, माइग्रेशन कहा जाता है. उसके अलावा क्या होता है, एनी वेलफेयर स्कीम्स. हाँ, वेलफेयर स्कीम का एक पर्पज है, बट दैट इंस्टीट्यूशन इज बीइंग अंडरमाइंड. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट पीपल, माओइस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं. अब अगर वहाँ पे कोई वेलफेयर स्कीम है एंड इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, तो इट्स बेनिफिट है ना, जो बेनिफिट्स है इट विल नॉट बी डिलीवर्ड टू द टारगेट ग्रुप्स. अब क्या फ़ायदा जब आपको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है तो. सो अगेन द पीपल विल बी अफेक्टेड बाय दिस. तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन इज फॉर जस्ट 10 मार्क्स 150 वर्ड्स. आपने लिख दिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. यू मेंशन 3 पॉइंट्स हियर. ब्रेक करके इसको बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, बट इट हार्डली मैटर्स अगेन, है ना, क्योंकि हमने ब्रॉड कैटेगराइज कर दिया है. हेल्थ लिखेंगे, एजुकेशन लिखेंगे, इकोनॉमी लिखेंगे, स्किल लिखेंगे, रोड लिखेंगे, नहीं. आई कंबाइंड इट समवेयर. जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है उस तरीके से आंसर्स बनाएंगे. सिंपल. देन द लास्ट पार्ट, व्हाट मेजर्स टेकन. सो मेजर्स टेकन टू एलिमिनेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE. अगेन सिंपल है, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015. कॉम्प्रहेंसिव प्लान है बेसिकली. इट्स कॉम्प्रहेंसिव प्लान. क्यों कॉम्प्रहेंसिव प्लान? वी आर फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग सब कुछ. मतलब कैसे, देखिए पहले तो सिक्योरिटी आ गया, यू आर स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी, राइट. देन यू आर टॉकिंग अबाउट अ डेवलपमेंट. अब सिक्योरिटी अच्छी हो गई, डेवलपमेंट हो गया, देन यू टॉक अबाउट अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. ठीक है. सो इट्स अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान. ऑफ कोर्स द डेटाज और मे बी दिस फैक्ट थिंग्स आर टेकन फ्रॉम द PIB. गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट है. द होल आंसर कैन बी रिटर्न फ्रॉम दैट ओनली. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ 10 मार्कर क्वेश्चन, 150 वर्ड्स, so we have sufficient points to write. Correct. Aspirational districts, yes, government identified 35 aspirational districts specifically from the left wing extremist affected areas. हमें पता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हम क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स हेल्थ है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट, ये सारों की बात इसमें हो जाएगी. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अगेन अम्ब्रेला टर्म. समाधान लिखना है, लिख सकते हैं. Of course, it's evergreen. Everyone talks about a समाधान doctrine when it comes to left-wing extremist areas. ठीक है, never mind. समाधान भी है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं है. But then skill development and education again specifically,
skilling, reskilling, upskilling. Why? Because we know a livelihood, सब कुछ खेल इसी का है. If you are earning, if you can satisfy the need of yours and your family, आप जनरली उस एरिया में यू विल बी स्टेइंग फॉर द लॉन्गर पीरियड, है ना. माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न ये भी तो है कि यू डोंट गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू अर्न वंस लाइवलीहुड. तो यहाँ पे वो काम हो जाएगा. ठीक है. तो 6 पॉइंट्स प्लस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखा है. 150 वर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा है ये. ठीक है. सो ब्रॉडर पॉइंट्स, just elaborate it a little bit, not much, that will be sufficient. अब देखिए एक्चुअल में क्या है यहाँ पे. here is the statement, government made the statement came from the Ministry of Home Affairs. they already said, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली स्टेटेड कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विल बी एलिमिनेटेड बाय 2026. अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ही बोल दिया है, गवर्नमेंट सेड इट. तो अब इसमें क्या बच गया है कि वी आर अश्योर्ड कि हाँ भाई ये होने वाला है. और ये सब स्टेटमेंट को बताने के लिए ही आई मेंशन्ड ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, which is held as a golden chapter towards the aim of eliminating what? Eliminating left wing extremism by 2026, है ना. तो उस स्टेटमेंट को कंटेक्चुअलाइज करने के लिए ये लिखा गया, यू एड्रेस द डिमांड एंड अल्टीमेटली देयर विल बी अ कंक्लूजन. तो नाउ वी आर क्लियरली रिकॉग्नाइजिंग, जब मैंने हमारे इंट्रोडक्शन में लिखा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, है ना, तो आई हैव टू रिकॉग्नाइज कि यस, थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट मेजर्स वी हैव सिग्निफिकेंटली वीकेंड द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, है ना. सो देर इज सब सिग्निफिकेंट वीकनिंग ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट. नाउ व्हाट वी नीड इज अ सस्टेन्ड पॉलिटिकल विल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट टू अचीव अ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट फ्री इंडिया, है ना. अगेन LWE फ्री इंडिया बाय 2026. सारा पॉइंट ही तो ये है, राइट. दिस इज द होल पॉइंट, बिकॉज क्वेश्चन स्टेटमेंट में ही देखा गया है, वहाँ पे लिखा गया है. सो वी आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड दैट statement given by the examiner along with satisfying the core demand of the question within that specified word limit. That's all we have to do because question is very straightforward. Left wing extremism topic अपने आप में काफ़ी बार आ चुका है. The themes have repeated multiple times, है ना, and this is quite expected question this year. So this is all about this question. Thank you everyone.